Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Broad Spectrum Test Preparation. In this video, we will discuss about number system, how many types and how we can convert one type of number system into another type. Let's start our video. First of all, we can see that there are four types of number system: binary system, base 5 system, octal system and decimal system. These are the types of number system on the base of their bases, mean base 2, base 5, base 8, and decimal system is also called the base 10 system. This is mostly used in our daily calculations and everyday life mathematics. In next slides, we will discuss in detail about each number system. Okay, first one is binary system. Why we call it binary system? Because it has two digits, 0 and 1. Here we cannot include 2. It is also called the base 2 system because here we number use 0 and 1. These has the base of 2. Here you can see that 2 is base is written as a subscript of the numbers. Here we can easily see that 101, and with base 2 it means it is in base 2 system, mean binary system. Okay, next one is base 5 system. Why it's called base 5 system? Because it has only 5 digits, 0, 1, 2, 3, 4, and here we can see that 5 is not included in this. And octal system is base 8 system. Here it has 8 digits, 0 to 7. 8 is not included in this. Okay, decimal system, that is the most commonly used system in our daily routine and mathematics. These has 9 digits, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And then next other digits are originated from these digits. Let's suppose when we want to make 10, it is the combination of 1 and 0, 1 and 0. Similarly, if we want to make 11, it is the combination of 1 and 1. Similarly, 12 is the combination of 1 and 2. It's mean we can say that all other number in maths are the combination of first 10 digits of decimal system. Decimal system is also called the base 10 system. Okay, next we discuss how we convert our base number system into the decimal system and decimal system into the number system. Okay, here you can see that 1001 with base 2. It's mean our question is in base 2, being binary system. We want to convert it into decimal system. Okay, आपने सबसे पहले इसमें क्या करना है, लिखना है क्या, 1 फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस सेकेंड डिजिट मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस थर्ड डिजिट एंड मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 4 डिजिट मल्टीप्लाई बाय बेस. ओके, व्हेन आपने ये सब लिख लिया, आपने इसके बाद क्या करना है, इसकी पावर्स देनी शुरू करनी है. आपने पावर्स राइट हैंड से स्टार्ट करनी है, 0, 1, 2 एंड 3. अब आपने पावर्स दे ली. अब इसके बाद आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है. 1 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, वो आपके पास किसके बराबर है, 8. यानी 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 2 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. वो 8 आएगा, 2 to 4, 4 to 8.
इसी तरह 2 की पावर 2 ली तो वो आपके पास 4 आ गया, 2 की पावर 1 ली तो वो 2 आ गया, और किसी भी अदद की अगर पावर 0 हो तो वो आपके पास 1 आ जाता है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास आंसर 9 आ जाएगा। मतलब जो डेसिमल सिस्टम में आपके पास 9 था, ये वाला 9 था, वो आपके पास बाइनरी सिस्टम में 1001 बेस 2 के इक्वल होगा। ठीक है, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी सिस्टम इनटू द डेसिमल सिस्टम। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस वी विल कन्वर्ट द बेस 5 सिस्टम इनटू द डेसिमल सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल we will multiply first digit with base, second digit with base, third digit with base, and then allot the power 0, 1, 2. Power will be start from right hand side. Okay, if we take the power of 2 5, इट इज इक्वल टू 25। ओके, 25 आ जाएगा। यहाँ पे 5 की पावर 1 लें तो वो 5 आ जाएगा, इसी तरह 5 की पावर 0 लें तो वो 1 आ जाएगा। इनको सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना, वो 97 के इक्वल आ जाएगा। यानी डेसिमल सिस्टम में जो 97 है वो आपके बेस 5 के सिस्टम में 342 बेस 5 के सिस्टम में होता है। जो यहाँ पे लिखी होती है ना चीज़, सबस्क्रिप्ट में लिखी होती है, तो वो हमेशा किसी भी जो सिस्टम नंबर सिस्टम है उसकी बेस होती है, यानी वो उस नंबर सिस्टम में आपके पास अदद दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास डेसिमल सिस्टम में कोई भी नंबर दिया गया है तो हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द नंबर सिस्टम, एनी नंबर सिस्टम लाइक बाइनरी सिस्टम, बेस 5 सिस्टम एंड ऑक्टल सिस्टम। ओके, here is the question 12. 12 is in decimal system, not in binary and other system. Okay, 12 is equal to 11012 in binary system. How we can convert it? Very simple. आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास आपने जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले। तो जिस बेस सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना है उस पर आपने तकसीम करते जाना है, डिवीजन का अमल होगा। वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का हुआ था, यहाँ पे डिवीजन का, इसके ऑपोजिट होगा। यानी 12 को आपने कन्वर्ट करना है बेस 2 में, तो इसलिए बेस 2 में करना है तो हम 2 पे डिवाइड करेंगे। जब 12 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है 6, और आपके पास रिमेनिंग क्या बचता है, रिमाइंडर, वो 0। तो आपने 0 को इधर लिख देना है। फिर आपने 2 पे डिवाइड करना है। जब 6 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आता है, और रिमाइंडर आपके पास क्या बचता है 0। ओके, इसी तरह अगर 3 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 2 1 2 1 आ गया, और रिमाइंडर क्या बचा 1। ओके, अब आपके पास ये सारे आ गए। अब इसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से 1 1 0 0। तो ये आपके पास किस में आ गया, बेस 2 में। यानी 12 जो है वो बाइनरी सिस्टम में 1102 के इक्वल है। ठीक है, अगेन अगर आपने क्या करना है कि आपके पास किसी भी सिस्टम में दिया गया है, जैसे बाइनरी, ऑक्टल या बेस 5 के सिस्टम में कोई भी डिजिट दिए गए हैं, तो आपने उसको बाइनरी सिस्टम में डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास डेसिमल सिस्टम में दिए गए हैं तो किसी भी बेस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, और उसी बेस, जिस बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसी में तकसीम करते जाना है आपने, और रिमाइंडर को साइड पे लिखते जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है 864, ये डेसिमल सिस्टम में दिया गया है। याद रखिएगा कि जब भी हम डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं तो हम कभी भी उसकी बेस को मेंशन नहीं करते, वो ऑटोमेटिक सी बात है, हमें पता है कि वो बेस 10 के सिस्टम में है। अच्छा जी, 864 को आपने कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 8 को 8 पे डिवाइड किया, तो जब 864 को 8 पे डिवाइड किया तो 108 आता है, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आता है 0।
इसी तरह फिर आपने 8 पे डिवाइड किया उसको, तो आपके पास 13 आया और रिमाइंडर क्या आया 4। मीन 8 1 8 1 आ गया, फिर 2 इधर गया 28 हो गया। 28 को जब 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके 24 आ गया, तो और 4 रिमाइंडर। इस तरह 8 को 8 1 8 और फिर 5 क्या आ गया रिमाइंडर। अब आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, ठीक है। 1 5 4 और 0, और उसके बाद आपने नीचे सबस्क्रिप्ट में हमेशा नीचे आती है, यहाँ पे आपने उसकी बेस लिख देनी है। इसका मतलब यह है कि ये बेस 8 में है। यह मैंने बेस 8 में और बेस 2 में बता दिया। सिमिलरली वी कैन कन्वर्ट द डेसिमल सिस्टम इन बेस 5 and by following this method. Okay, that's all and thank you. अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो इतनी थी।